وسلم عليك يا نام کا جانی نام ہے کیوں حبیب ایسے؟ اللہ. سارے مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اب دوستو آپ سبھی کا جنتا ٹی وی ہندوستان میں سواگت ہے. ہمارے ساتھ شبیر صاحب ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ دعوت اسلامی کے ریجنل ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہیں اور یہ یہاں جو بنگال میں پورے بنگال میں جو دعوت اسلامی اپنے حساب سے کام کر رہی ہے اس کی ذمہ داری دیکھتے ہیں. تو دعوت اسلام انڈیا کے وہ ذمہ دار ہیں اور یہ سارا کام دیکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت مرکزی ہورہ کے کھسڑی میں ان سے ملاقات ہوئی ہے. یہاں ایک پروگرام چل رہا دستار بندی کا اور بھی کئی پروگرام اس کے ساتھ ساتھ. تو ان سے ہم کئی سوال کریں گے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعوت اسلامی کس مقصد کے تحت یہاں پر کام کیا گیا تھا اور آگے ان کا کرنے کا کیا ارادہ. تو شبیر صاحب بتائیے کہ پہلے یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. تحریک دعوت اسلامی انڈیا یہ ایک اتنی بڑی تنظیم و تحریک ہے، ایک ایسا موومنٹ ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتی ہے، اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح. یعنی گناہ سے توبہ، نیکیوں کی طرف لوگ کیسے مائل ہوں، نمازیوں کی تعداد مسجد میں بڑھے، مسجد نمازیوں سے بھر جائے، لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس آئے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس کام سے ہمارے مذہب نے، اسلام نے ہمیں روکا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق ہم زندگی کیسے گزارے، یہ دعوت اسلامی کا ایک پیغام اور مقصد ہے. اور آج یہاں جو اتنے بڑے پروگرام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذرا. آج کا جو یہاں ایک اجتماع ہے، یہ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ مدرسۃ المدینہ، کیونکہ دعوت اسلامی انڈیا میں تقریباً 55 ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ، اس کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ، اسی کے تعلق سے آج یہاں پروگرام ہے کہ اس مدرسے سے جتنے بچے اب تک حافظ بن چکے ہیں، قرآن پاک ناظرہ مکمل کر چکے ہیں، انہیں آج سند دیا جائے گا، ان کی آج دستار. اور یہ جو 55 ڈپارٹمنٹ آپ نے کہا اس میں مین جس کا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا. دیکھیں، یہ سارے ڈپارٹمنٹ 55 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سب اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ سارے شعبے کا یہی مقصد ہے جو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ دعوت اسلامی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی اصلاح کر. آئی مسٹ ٹرائی ٹو ریکٹیفائی مائی سیلف، یعنی مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے. تو اسی کے تحت یہ 55 ڈپارٹمنٹ ہیں، جس میں ہمارا مدرسۃ المدینہ ڈپارٹمنٹ جو کہ جس کا آج پروگرام ہے، اس میں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، حفظ مکمل کرتے ہیں، قاری بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اپنی زندگی کو وہی کے سنتوں کے سانچے کے مطابق ڈھالنا ہے، کیسے گزارنا ہے، وہ ساری تعلیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دعوت اسلامی کے تحت مدرسے چلتے ہیں, اسی طرح اور بھی ایک دو چار ڈپارٹمنٹ کا نام بتا دیجیے جن کا کام جیسے کہ ایجوکیشن کا ہے. تو اور ایجوکیشن کی آپ بات کریں گے تو بالکل یہ ایجوکیشن ہی ہے کہ دینی تعلیم یہ بھی ایک ایجوکیشن ہے، اور اسی کے ساتھ چونکہ ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں ایک دیکھیں گے تو ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا فقدان ہے، یعنی ایک بہت بڑا گیپ پایا جاتا ہے. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ ہر کوئی پرٹیکولر ایک انسان ایجوکیٹڈ ہو، اتنا نالج اس کے پاس ہو کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے علم کی روشنی میں گزار سکے. اس تعلق سے بھی اسی مدرسۃ المدینہ کا ڈپارٹمنٹ میں ایک ونگز اس کا ہے جسے ہم کہتے ہیں ماڈرن ایجوکیشن. اسی مدرسے کے اندر ہم اسکل انہینسمنٹ کی بھی تعلیم دیتے ہیں، جیسے مدرسے کے ٹیچرز حضرات جو ہوتے ہیں جو اردو پڑھتے پڑھاتے ہیں، عام طور پر ایک لوگوں کی مینٹیلٹی ہے کہ حافظ اور عالم انگلش نہیں بول سکتے. غلط ہے بالکل، کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ انٹرنیشنل ملک میں جائیں تو وہاں حافظ اور عالم آپ سے، دیگر ممالک میں جہاں زبان ہی انگلش ہے تو وہ انگلش میں بات کریں گے. میٹر انگلش نہیں، میٹر یہ ہے کہ آپ کے اندر نالج کتنا ہے، علم کتنا ہے. جی ہاں، اور ویسے انگلش چونکہ ضروری ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کو ضروری ہے. اسکول میں لینگویجز بھی فرسٹ لینگویج انگلش ہوتے ہیں. تو اس تعلق سے یہ ونگز ہمارا ماڈرن ایجوکیشن جو مدرسۃ المدینہ کے اندر ہی لوگوں کو انگلش، میتھمیٹکس اور دیگر چیزوں کی تعلیم دیا کرتا ہے، تاکہ ایزلی ہمارے بچے جو ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم انگلش میں کچھ بول نہیں سکتے،
तो स्किल इन्हेंसमेंट के ज़रिए उनकी ये स्किल को डेवलप किया जाता है और वो अच्छे अंदाज में लोगों के सामने इंग्लिश में बात करके लोगों को नेकी की दावत दे सकते हैं। और जैसे स्कूल्स वगैरह जो होते हैं उनके जो सेक्शन जैसे क्लासेस हैं 1 टू ऐसे मदरसा में भी इस तरह के कुछ जी निज़ाम हाँ, है? वही मैंने अर्ज़ किया आपसे कि दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट मदरसतुल मदीना, जहाँ कुरान की हिफ्ज़ की और नाज़रे की तालीम दी जाती है, इसी के अंदर एक विंग्स हमारा मदरसे के अंदर एक क्लासरूम होता है। पर्टिकुलर उस क्लासरूम में बेंचेस लगे होते हैं, जैसे स्कूल है, एक तरह से स्कूल ही है ये। तो लोग हमारे बच्चे जब उर्दू और अरबी की तालीम से फ़ारिग होते हैं, तो एक टीचर मॉडर्न एजुकेशन जो उन बच्चों को इंग्लिश की तालीम देता है, मैथमेटिक्स के बारे में बताता है, साइंस के बारे में बताता है, हिस्ट्री के बारे में बताता है, हमारे संविधान के बारे में बताता है और हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, इससे आगाही होती है और हमारे बच्चे यूँ दुनियावी नॉलेज से मॉडर्न एजुकेशन से भी अपडेट होते और सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया जाता हैं। है जी इसमें? हाँ, जब बच्चे यहाँ से फ़ारिग होते हैं, तो उन्हें सर्टिफ़िकेट दी जाती है और उस सर्टिफ़िकेट में ये मेंशन होता है बिल्कुल कि कितने मार्क्स से इन्होंने कितना एग्ज़ाम दिया और उसमें इनके मार्क्स कितने हुए। इसी हिसाब से यहाँ यानी कि यूँ समझ लीजिए कि सर्टिफ़िकेट इश्यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और हमारा बेहतरीन निज़ाम दावत इस्लामी इंडिया का है, प्रॉपर स्कूल का निज़ाम। ये तो मैंने अर्ज़ किया आपको कि मदरसे में जो बच्चे यानी रहते हैं, यहाँ पर जो रहना होता है, जिनका सोना होता है, खाना-पीना और इसके साथ जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्लासरूम का एहतमाम मदरसे के अंदर है। लेकिन वो लोग जो स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमारा एक स्कूलिंग सिस्टम है जिसका नाम है दारुल मदीना इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये ऑब्वियसली आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड से एफ़िलिएटेड है और ये तकरीबन हिंदुस्तान में कई सारे इसके ब्रांचेज़ हैं। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, वैसे इसमें भी आ रहे होते हैं और इसमें भी वही है कि इंग्लिश की पूरी तालीम, स्कूल की पूरी तालीम से बच्चों को आगाही की जाती तो ये ब्रांच क्या हावड़ा में है? यहाँ भी है? है। यहाँ ये कलकत्ता में आपको ये स्कूल मिलेगा, कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, गुजरात में है, कई सारे स्टेट में जगहों पर है, हमारे वेस्ट बंगाल में भी है और भी हमारी प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में अ, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉश एरियाज़ है, जहाँ वाक़ई एजुकेशन के का डिमांड है कि यहाँ बच्चे पढ़ें और इनके लिए एक बेहतरीन स्कूल का निज़ाम हो, जहाँ पर अच्छी तालीम दी जा सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी होगा दावत इस्लाम इंडिया के ज़रिए, आप सबों के ताउन से। और एक ये कि जो मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें दावत इस्लामी किस अंदाज में इसको लेना चाह रही है और क्या मैसेज लोगों को देना चाह रही है ताकि अमन बरकरार रहे और लोग शांति के साथ? देखिए, इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है कि जब कोई शख्स के अंदर ये एक इल्म और एक डर होना कि मैं ये काम अगर कर रहा हूँ, तो इससे मेरा रब नाराज़ होता है, अल्लाह नाराज़ होता है, अल्लाह के रसूल नाराज़ होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो ऐसे काम कभी करेगा ही नहीं। कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज को नुकसान पहुँचे, मुल्क को नुकसान पहुँचे, सोसाइटी पर उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़े, वो कभी नहीं करेगा। इसीलिए दावत इस्लामी का ये नारा है कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है और लोगों की इस्लाह करनी है। कोई अगर अपनी रेक्टिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसके अंदर वो जज़्बा आएगा कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अपनी इस्लाह बैक बाइटिंग यानी गीबत नहीं करेंगे, क्योंकि फितने, फ़साद और मुल्क का अमन जो ख़राब हो रहा है ना, इसे बरकरार रखने के लिए हमें इन गुनाहों से बचना होगा। हम जब किसी की बुराई नहीं करेंगे, तो कोई हमारी बुराई नहीं करेगा। हम कूड़ा-करकट रास्ते में नहीं फेंकेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई हमारे सोसाइटी और हमारे माहौल को भी खराब नहीं करेगा। इसी तरह गेट टुगेदर हम सबको मिलकर अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को एक पीसफुल कंट्री बनाना है, जिसके लिए माशाअल्लाह दावत इस्लामी का एक बेहतरीन डिपार्टमेंट जीएनआरएफ यानी गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन, ये रिलीफ का काम करती है, फलाही काम करती है और मुल्क के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए इस डिपार्टमेंट का बड़ा अच्छा किरदार है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बहुत हो रही है। आज से 20 साल पहले लोग कहते थे कि गर्मियाँ कम लगती थी, सर्दी बहुत देर तक रहती थी। तो अब ग्लोबल वार्मिंग का मामला बढ़ता जा रहा है, दरख्त कटते जा रहे हैं। माशाल्लाह आपको मैं बताऊँ, दावत इस्लामी इंडिया का ये डिपार्टमेंट जीएनआरएफ ने तकरीबन 90,000 दरख्त लगाए, 90,000 हर तरफ दीवानावार परमिशन लेकर गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रास्ते में, रोडों पे, घरों पर, बागीचे पर हर तरफ दरख्त लगाए गए। तो ये एक रिलीफ का काम। इसी तरह बालेश्वर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट के जीएनआरएफ रिलीफ के हमारे इस्लामी भाई लोग पहुंचे और वहाँ लोगों को पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये सारे सिलसिले रहे। और इतना बड़ा जो नेटवर्क चल रहा है दावत इस्लामी का तो ये सारे फंड जो कैसे लाते हैं देखिए, कैसे? फंड का जो मामला है, जाहिर सी बात है दावत इस्लामी जो दीन की खिदमत कर रही है, तो अब
कि एक जो इसका चंदा होता है, चूँकि चैरिटेबल वर्क है, ये एक खिदमत का काम है, फलाही काम है। तो अब एक दूसरे को जब हम अपनी दर्द बताते हैं कि ये काम होना है और इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ये अमाउंट रिक्वायर्ड है। जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चे को हाफिज़ बनाने का जितना भी खर्चा है, अगर आप किसी को कहेंगे कि किसी बच्चे के अंदर कुरान की तालीम, दीन की तालीम आ जाए, और हमारे तमाम चीज़ों में दावत इस्लामी के मदरसे में जो तालीम दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़ाहिर सी बात है। तो अब फंड जनरेट तो कहीं से होगा नहीं, अब बच्चे पैसे लाएंगे नहीं। अब क्योंकि गरीब तबके के लोग होते हैं जो बेचारे इतना अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप और हमें आगे बढ़ना होगा और मदद करनी होती है। चूंकि कुरान में हुक्म है कि अल्लाह के राह में दो, और जो तुम राह खुदा में दोगे वही तुम्हारा माल है। और कोई मैसेज देंगे? मैसेज मैं यही दूंगा कि हमारे जो यूथ है, नौजवान, जो कल के इमाम है, कल के डॉक्टर है, कल के स्कॉलर है, यानी हमारा वो, यानी स्टूडेंट जो 10th में है, 11th में जाने वाला है, इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सोसाइटी से फर्द नहीं बनते, फर्द से सोसाइटी बनता है। अगर आप बन गए तो सोसाइटी बन गया, आप बन गए तो माशरा बन गया। तो इंशाअल्लाह मैं आपको ये दावत दूंगा कि दावत इस्लामी का सबसे बड़ा इवेंट रमज़ान आ रहा है, और रमज़ान में हम 1 महीने का और 10 दिन का एहतिकाफ करते हैं। और ये कहाँ होगा ये भी सुन लीजिए, टेकियापाड़ा जामा मस्जिद, हावड़ा बेलियस रोड, खिदरपुर मोमिनपुर बाजार की छोटी मस्जिद, तोफसिया नूरी मस्जिद, हावड़ा की कई सारी मसाजिद हैं। इंशाअल्लाह अगर आपको इस बारे में जानना है तो दावत इस्लामी के जो जिम्मेदारान हैं हावड़ा से, कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, कहिए कि मुझे एहतिकाफ करना है ताकि हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ कुरान पाक की तालीम हासिल कर सके, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। यूँ एहतिकाफ का सुन्नत भी अदा हो जाएगा और आप नॉलेज भी हासिल कर लेंगे। ये आज का मेरा मैसेज और आपके लिए पैगाम। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन।